Hello students, today we are going to study reactive intermediate. In the previous video we have studied variety of reaction mechanism. In this video we will see how this reaction mechanism affect the stability of reactive intermediate. So let's start. Most of the organic reactions are occur by involvement of some reactive intermediate. These reactive intermediate is having short life of around 10 to the power minus 6 second. Because of that they are very reactive and cannot be isolated. These short lived reactive intermediate which are very reactive and cannot be isolated are responsible for the variety of organic reaction in organic chemistry. Some examples of reactive intermediate like carbocation, carbon ion, free radical, carbenes and nitrines. So let's start with carbocation. So first is carbocation. Carbocations are those ionic species in which there is a positive charge on the carbon atom. Because of the positive charge on the carbon atom, it is having 6 electron in its valence shell. Due to that they are behaving as a electrophile or electron deficient species. There are many reaction by which carbocation can be prepared. ठीक है, जो आपकी फर्स्ट है that is by heterolytic fission of covalent bonds. एग्जाम्पल, ठीक है, अगर हम टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड ले लेते हैं, एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे, दिस इज टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड. ठीक है, हेट्रोलिटिक फ्यूजन हो रहा है. इट मीन्स बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, दिस हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल टेक अवे द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड टूवर्ड्स इटसेल्फ. तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किसकी तरफ हो जाएगा? क्लोरीन की तरफ. ड्यू टू विच देयर विल बी अ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन and Cl minus is behaving as a leaving group. ठीक है, लीविंग ग्रुप क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट इज टेकिंग अवे द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड. और क्या हो जा रहा है? बाहर निकल जा रहा है. इसलिए ये किस तरह से बिहेव कर रहा है? इट इज बिहेविंग लाइक अ लीविंग ग्रुप. दिस इज कार्बोकेटायन. और ये कौन सा कार्बोकेटायन है? दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन. ठीक है, 3 डिग्री बिकॉज देयर आर 3 एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड विद द कार्बन. ठीक है, सेकेंड प्रिपरेशन मेथड है मोस्ट कॉमन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स. Dehydration of alcohol. This is occurring in the presence of acid, that is concentrated H2SO4 at 430 or 440 Kelvin temperature. Between 430 to 440 Kelvin temperature. Concentrated H2SO4. ठीक है, 430 to 440 Kelvin temperature in the presence of H plus which is behaving as a catalyst. CH3, CH2OH which is ethyl alcohol. H plus is behaving as a electrophile because it is electron deficient. So it will be attacking on the lone pair of the oxygen which will form protonated alcohol because the positive charge is coming on the oxygen. ठीक है, one lone pair will be left. ठीक है, तो this is protonated alcohol. ठीक है, this will lead to, because the positive charge is unstable on the oxygen because it is second most electronegative element. तो ये जो ऑक्सीजन है this will take away this bond. ठीक है, जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है वो उसको अपनी तरफ ले लेगा, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है दैट विल बी कंप्लीटेड. दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर. ठीक है, सो दिस इज द स्टेप, ठीक है, बाय विच द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस. ठीक है, दिस विल बी 1 डिग्री कार्बोकेटायन बिकॉज देयर इज 1 एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बोकेटायन. तो दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन. Carbocation is also known as carbenium ion. ठीक है, and also known as
carbonium ion. This term carbonium ion was used earlier. Now the terms are used carbocation or carbenium ion. ठीक है, so these are the preparation method of carbocation. Next is the classification. Next is classification of carbocation. Carbocations are classified on the basis of alkyl groups, यानी number of alkyl groups which are attached to the carbocation. ठीक है, यानी carbon which is having positive charge. ठीक है, तो ये किस तरह से classified थे? 3 degree, 2 degree, 1 degree. ठीक है, in 3 degree there will be 3 alkyl groups are attached to the carbon which is having positive charge. In 2 degree there will be 2 alkyl groups. In 1 degree there will be 1 alkyl group. ठीक है, on the basis of this they are classified. Third is stability. ठीक है, so the stability order of carbocation is 3 degree was most stable, then 2 degree, then 1 degree. ठीक है, and last में जो था that is मिथाइल कार्बोकेटायन. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी वॉज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म. तो स्टेबिलिटी इन कार्बोकेटायन इज एक्सप्लेन्ड बाय फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट. इन द केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ग्रेटर विल बी द एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द कार्बोकेटायन, लेसर विल बी द डिफिशियंसी ऑफ द कार्बन विच इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज. बिकॉज द एल्काइल ग्रुप इज बिहेविंग एज अ डोनेटिंग ग्रुप, सो दे आर शोइंग प्लस आई इफेक्ट. ठीक है, देख लीजिए, इन दिस केस देयर आर 3 alkyl groups which are attached to this carbocation which is electron deficient, so they are donating sigma electron towards this carbocation, that is this electron deficient carbon. ठीक है, we know that the alkyl group is behaving as a donating group, it is having plus I effect. So in this case there is very large number of alkyl groups are present, so the plus I effect will be very high, so the deficiency of this carbon will be less. ठीक है, तो next, in the case of secondary, there are 2 alkyl groups, donating groups are attached. ठीक है, so in comparison to 3 degree, 2 degree will be 2 degree carbocation will be less stable in comparison to 3 degree. Next, in primary there is only 1 alkyl group is present. ठीक है, so the deficiency of this carbon will be more in comparison to these. ठीक है, तो 1 degree will be less stable and least stable will be methyl carbocation because there is no alkyl group present, no inductive effect is showing, so this carbocation will be more deficient, electron deficient. ठीक, stability order will be given as from left to right, stability will decrease because the number of alkyl groups are decreasing. Because of that, plus I effect is also decreasing from left to right. So this is the stability order on the basis of inductive effect. Stability order in 3 degree, 2 degree, 1 degree is explained by resonance. ठीक है, तो देख लीजिए, आपको पता है in the resonance जो आपका कार्बोकेटायन है that should be attached to some multiple bonded system, यानी conjugated होना चाहिए. किसके साथ? डबल बॉन्ड के साथ. ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे कैसे होगा. एग्जाम्पल, एलाइल कार्बोकेटायन, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, दिस इज एलाइल कार्बोकेटायन. ठीक है, in this resonance will takes place because the carbocation is attached to the doubly bonded system. ठीक है, which is responsible for the resonance. तो ये क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा. ठीक है, because of that double bond will shift in this position, then positive charge will occur on this position. So these are the 2 structure, that is canonical structures. ठीक है, this is first. Second will be in aromatic, यानी in benzyl. This is benzyl carbocation. ठीक है, carbocation is electron deficient, so this pi electron will be shifted towards the carbocation. ठीक है, तो यहाँ पे this will be meta directing group. It is behaving as this carbocation is behaving as meta directing group, so this will be shifted to this side. Next step, double bond will be shifted to this carbon. ठीक है, in this position double bond will be shifted, positive charge on the carbon will be vanished, then
and in this carbon, in this position there will be positive charge. ठीक है, ठीक है, this will be, this is the first, this is second. Next, now this double bond will be shifted to this side, so positive charge occur on the para position, and double bond to will be shifted to this side. Next step, this bond will shift to this side and positive charge will occur on this carbon. ठीक है, double bond will be shifted to this will be as it is. ठीक है, next, this bond will be shifted to this side. CH2 will again occupy the positive charge. ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड. ठीक है, सो दीज आर द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्म्ड बाय द रेजोनेंस. ठीक है, इन बेंजाइल कार्बोकेटाइन, एंड दिस CH2 प्लस इज बिहेविंग एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीजिंग एट मेटा पोजिशन. एक वही पोजिशन है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, बाकी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. सो इट मीन्स इट इज बिहेविंग एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर अटैच, अगर इसी कंडीशन में देयर इज सम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर अटैच्ड बिकॉज ऑफ देयर इज अ डिफिशियंसी ऑन दिस कार्बन. इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर अटैच्ड एट द पैरा पोजिशन. ठीक है, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकते हैं, कहाँ पे अटैच होंगे, पैरा पोजिशन पे. ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं आपके, OCH3. ठीक है, इथरल ग्रुप, बिकॉज ऑक्सीजन इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस पोजिशन, पैरा पोजिशन. दिस ऑक्सीजन विल बी इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ दैट द डिफिशियंसी ऑन कार्बोकेटायन विल डिक्रीज. ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट है आपका OH, एल्कोहलिक ग्रुप. नेक्स्ट है आपका CH3, एल्काइल ग्रुप. एल्काइल ग्रुप इज ऑल्सो बिहेविंग एज डोनेटिंग ग्रुप से. ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पैरा पोजिशन पे आ जाते हैं तो डिफिशियंसी ऑन दिस कार्बन विल डिक्रीज. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अगर आपके लग जाते हैं विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. ठीक है, पैरा पोजिशन पे, तो दीज आर लाइक क्लोरो, NO2. ठीक है, साइनाइड, COOH. इफ दीज ग्रुप्स आर अटैच टू द पैरा पोजिशन देन दे विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ ड्यू टू विच द डिफिशियंसी ऑन दिस कार्बन विल इंक्रीज. ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल destabilizes the stability of carbocation, whereas electron donating group stabilizes the carbocation. क्योंकि ये डोनेट कर रहे हैं, जब ये डोनेट करेंगे तो डिफिशियंसी ऑन कार्बोकेटाइन विल डिक्रीज, बिकॉज ऑफ दैट स्टेबिलिटी विल इंक्रीज. नेक्स्ट, स्टेबिलिटी इज एक्सप्लेन्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन. इन द केस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन द नेसेसरी कंडीशन विल बी देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. केस में सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे इन द केस ऑफ टर्शरी कार्बोकेटाइन. टर्शरी कार्बोकेटाइन में सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे. देख लीजिए कितने हैं, CH3, 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 दिस इज प्लस. ठीक है, तो कार्बोकेटाइन से जो पहला आपका कार्बन यहाँ पे अटैच है दैट इज अल्फा कार्बन, and the hydrogen which are attached to the alpha carbon are behaving as a alpha hydrogen. Greater will be the number of alpha hydrogen, greater will be the stability, और greater will be the hyperconjugative structures. ठीक है, फिर किस में होगा, in the case of secondary, ये आपका क्या हो गया, tertiary. Next, ये आपका क्या है, ये है प्राइमरी, बिकॉज देयर इज वन अल्काइल ग्रुप विच इज बिहेविंग एज अ अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन, CH3 प्लस. इन दिस केस देयर इज नो अल्काइल ग्रुप और अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, सो इट इज हैविंग लीस्ट स्टेबिलिटी. ठीक है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन नहीं होगा. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है इन टर्शरी, देन इन सेकेंडरी, देन इन प्राइमरी. ठीक है, लीस्ट किस में आपका, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन बिल्कुल भी नहीं है, स्टेबिलिटी विल बी लीस्ट. ठीक है, तो इधर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है, इस साइड पे डिक्रीज हो रहा है, तो स्टेबिलिटी इस साइड पे आपकी क्या होगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज द हाइपर कॉन्जुगेशन इज डिक्रीजिंग इन दिस साइड. एग्जाम्पल,
ठीक है, दिस इज 1 डिग्री, ठीक है, इन दिस 1 अल्फा कार्बन इज प्रेजेंट, दिस इज अल्फा कार्बन। अब अगर इसी का ओपन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन, ठीक है, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, दिस विल बी कॉन्जुगेटिंग टू दिस पोजीशन, तो ये क्या हो जाएगा आपका HCH प्लस डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट विल बी दिस हाइड्रोजन H प्लस CH, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप विल बी दिस वन H प्लस CH CH2, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर इज नो बॉन्ड इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन H प्लस एंड कार्बन, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है, किसको, हाइपर कॉन्जुगेशन को, ठीक है। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स इन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन से कितने बन रहे हैं, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर्स होंगे। तो देख लीजिए 1 2 3, देयर आर 3 हाइड्रोजन्स, so 3 hyperconjugative structure will be formed in the case of primary, ठीक है, 3 hyperconjugative structure बनेंगे, ठीक है। in the case of secondary there are 6 alpha hydrogens, so it will form 6 hyperconjugative structure, यहाँ पे 6 बनेंगे। next in this case there are 9 alpha hydrogen, so it will form 9 hyperconjugative structure. The combination of all three mechanism which is explaining the stability of carbocation, that is inductive effect, resonance and hyperconjugation, उसी के basis पे जो overall order है that will be C6H5 whole 3. Greater will be the number of phenyl which are attached to the carbocation, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी, ठीक है। ग्रेटर अगर आपके यहाँ पे फिनाइल ग्रुप्स हैं तो ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ द पाई बॉन्ड्स आर कॉन्जुगेटेड विद द कार्बोकेटायन, ठीक है। तो ग्रेटर विल नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड, और आपको पता है जितने ज़्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं उतनी ही स्टेबिलिटी होती है। नेक्स्ट इज दिस इज 3 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट इज C6H5, ठीक है, दिस इज 2 डिग्री। नेक्स्ट CH3, ठीक है, इन दिस केस देयर विल बी इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इन दिस केस देयर विल बी इंडक्टिव इफेक्ट एंड ऑल्सो हाइपर कॉन्जुगेशन, 2 रोल यहाँ पे प्ले हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एल्काइल ग्रुप। दिस इज 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, ये एरोमेटिक है, ये एलिफैटिक सिस्टम है। नेक्स्ट C6H5 CH2 प्लस, ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ दिस is less than this. In this case there is alkyl system is attached, ठीक है, in this case there is phenyl system is attached, it means the carbocation is joined by the conjugated system, so in this case there is resonance, ठीक है, but in this case there are 2 effects which are playing the roles in the stability of carbocation, that is hyperconjugation and inductive effect, ठीक है। तो इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी इनकी क्यों है, इस केस में आपके जो फिनाइल ग्रुप्स हैं दैट आर मोर, there is resonance, phenyl groups are more, due to which the Lewis structure, the canonical structure will be more, और आपको पता है जितने ज़्यादा canonical structure होते हैं उतनी ही stability होती है। next इसके बाद आपका है secondary, ठीक है, this next will be the allyl system which is conjugated to the double bond, it means in this also there will be resonance। next ठीक है, CH3 CH2 प्लस, ठीक है, दिस इज हैविंग लेस स्टेबिलिटी इन कंपैरिजन टू ऑल दीज, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। इन दिस केस यहाँ पे अगर आप देखेंगे द एल्काइल सिस्टम इज अटैच टू दैट कार्बन विच इज़ नॉट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ठीक है। तो ये आपका क्या है, लेस स्टेबल इन कंपैरिजन टू दिस स्ट्रक्चर, बिकॉज इन दिस केस देयर इज एल्काइल ग्रुप अटैच टू द कार्बोकेटाइन, तो इसकी स्टेबिलिटी उससे क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपका C6H5
प्लस, ठीक है, दैट इज फिनाइल कार्बोकेटायन, और लास्ट है आपका मिथाइल कार्बोकेटायन। तो दिस वाज द स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर कार्बोकेटायन। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? विच इज लीस्ट स्टेबल, ठीक है। द कार्बोकेटायन विच इज लीस्ट स्टेबल विल बी मोस्ट रिएक्टिव। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका कौन सा होता है? इन विच देयर इज नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स आर मोर, ठीक है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन विल बी मोर स्टेबल, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और लास्ट में आपका मिथाइल है, ठीक है। सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरफ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन पे, ठीक है। तो रिएक्टिविटी विल बी इंक्रीज्ड, रिएक्टिविटी इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज द स्टेबिलिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन इज हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन से स्ट्रक्चर कैसे बताते हैं? यू हैव स्टडीड ऑल दिस इन केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, इन 11th क्लास चैप्टर दैट इज केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ चुके हैं। एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज हैविंग शेप ऑफ प्लेनर, यानी प्लेनर स्ट्रक्चर होता है उसका। देख लेते हैं कैसे हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, ठीक है। सो देयर आर 3 sp2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो देख लीजिए, एंड 1 p ऑर्बिटल विल बी अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। दिस इज कार्बन विच इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, दीज आर द 3 बॉन्ड्स, ठीक है। ये 3 बॉन्ड है, या तो एल्काइल से हो सकते हैं, या यहाँ पे आपका R भी हो सकता है, H भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए क्या हो गया, यहाँ पे ये 3 जो आपके एल्काइल हैं, दे आर प्लेस्ड टू वन अनदर विद द एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल है इन एल्काइल के बीच में वो आपका कितना है? 120 डिग्री। और ये जो तीनों एल्काइल्स हैं, दिस इज कमिंग ऑन दिस प्लेन, ठीक है, एक ही प्लेन पे आ रहे हैं। तो अगर ये एक प्लेन हो गया तो दिस इज वन एल्काइल इज दिस, एंड 1 एल्काइल इज दिस। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। उसके जो लोब्स हैं दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है। तो दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना है? sp2, ठीक है। सो दिस विल बी sp2 सिग्मा बॉन्ड, sp2 सिग्मा बॉन्ड, sp2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। दिस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इज वैकेंट, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज द कार्बन इज हैविंग टोटल नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। तो दिस इज एम्प्टी, ठीक है। ये एम्प्टी है, इसीलिए देयर इज नो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इसकी वजह से जो एंगल है तीनों एल्काइल के बीच में दैट इज सिमेट्रिकल, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे कोई किसी तरह का भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए देयर इज अ एंगल ऑफ 120 डिग्री इन ऑल द 3 एल्काइल ग्रुप्स। नेक्स्ट इज कार्बनायन। एज यू कैन अंडरस्टैंड विद द टर्म कार्बनायन, इट मीन्स नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम ऑफ ऑर्गेनिक स्पीशीज। इट मीन्स इट विल बी हैविंग 8 electrons in its valence shell, because of that it is behaving as a न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की तरह बिहेव करेगा। सो देयर आर मैनी केमिकल रिएक्शन इन विच वी विल सी देयर विल बी द पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट ऑफ कार्बन आयन टेक्स प्लेस। एग्जाम्पल फर्स्ट, if OH minus is attacking on, this is acetaldehyde, ठीक है, this is attacking on the alpha carbon of this alpha hydrogen which is acidic. This alpha hydrogen is acidic. Why it is acidic? Because this is the carbonyl group which is behaving as electron withdrawing group. It is attached to this carbon, so it will be attracting its electron towards itself. Because of that, this carbon will become electron deficient, so this will attract electron from this alpha hydrogen, due to which this will donate its electron to this side,
ठीक है, यहाँ पे दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन और खुद किस में चेंज हो जाएगा, H+, ठीक है, और H+ विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस OH-, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे H2O फॉर्मेशन, ठीक है, एंड दिस इज एसिटल्डिहाइड कार्बन आयन। द केस ऑफ एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, व्हेन amide ion is taken NH2-, ठीक है, this NH2- will attract this hydrogen, ठीक है, why this hydrogen will be removing from this acetylene, क्यों ये रिमूव हो रहा है, because there is a triple bond, because of that this carbon is electron deficient, so it will be attracting electron from this hydrogen, ठीक है, तो जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो this NH2 will attract H+, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो गई, NH3 बाहर निकलेगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलाइड कार्बन आयन, acetylide carbon ion. This is classification of carbon ion. It will be similar like the carbocation, ठीक है, so what will be the classification, 3 degree, 2 degree, 1 degree, ठीक है, so this is the classification. When the carbon is having 3 alkyl groups, so it will be named as 3 degree. If 2 alkyl groups, 2 degree. If there is 1 alkyl group attached to the carbon ion, then it will be 1 degree. So this was the classification. Third is stability. The stability order for carbon ion was 1 degree, then 2 degree, then 3 degree. It was reverse of carbocation, ठीक है, कार्बोकेटायन का रिवर्स था, तो ये कैसे एक्सप्लेन हो गया, फर्स्ट देखिए the inductive effect. In the case of inductive effect, alkyl groups are behaving as a donating group, ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल, in the case of tertiary, ठीक है, दिस इज कार्बन आयन, कार्बन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो जब कार्बन में नेगेटिव चार्ज है और उससे अटैच हैं आपके डोनेटिंग ग्रुप्स, इट मीन्स दे आर डोनेटिंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स दिस कार्बन, इट मीन्स जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन है दैट विल डीस्टेबलाइज, ठीक है, उसके पास पहले से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इफ द डोनेटिंग ग्रुप्स आर अटैच टू दिस कार्बन आयन, दिस विल डीस्टेबलाइजेस दिस कार्बन आयन, ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी लीस्ट हो जाएगी. देन सेकेंडरी, in this case there are 2 alkyl groups are attached which are donating groups showing plus I effect, ठीक है, so the carbon is as it is negative, ठीक है, तो if the alkyl groups are more then the stability of this carbon ion will be less, but its stability in comparison to 3 degree will be more, तो 2 डिग्री की 3 डिग्री से क्या होती है, ज़्यादा होती है. नेक्स्ट आपकी क्या हो जाएगी, this is primary carbocation which is having more stability in comparison to this 2 degree. stability किस में होगी, in methyl carbon ion, ठीक है, because there is no donating group is attached to this carbon, so it is having most stability. तो इस तरफ जो आपका plus I effect है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो जो प्लस आई इफेक्ट है दैट इज डिक्रीजिंग, ठीक है, बट द स्टेबिलिटी left to right is increasing. Stability in carbon ion is explained by resonance. So if the double bond or triple bond system is attached with the carbon ion, then there will be more stability because of the resonance, ठीक है, तो देख लीजिए कैसे हो रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल, एलाइल, this is allyl carbocation, ठीक है, so this negative charge will be participating in resonance, ठीक है, so the electron density in this carbon will decrease because there will be dispersal of this negative charge, ठीक है, तो ये क्या हो गया, stability यहाँ पे क्या हो गई आपकी, increase हो गई because of the 2 resonating structure in allyl carbon ion. Next will be benzyl carbon ion, ठीक है, in benzyl carbon ion there will be also many canonical structure will be formed, ठीक है, तो this negative charge will be moved to this position, ठीक है, so this bond will be moving to this position. So what will be the next step,
In this case, as you can see, the electron density in this carbon is decreasing because of this negative charge is participating in resonance. ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है रेजोनेंस से. तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इन ऑर्थो पोजिशन. इट मीन्स इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. कार्बन आयन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. इट मीन्स electron density is increasing in ortho and para position. Next will be, this will move to this side. This bond will be shifted to this carbon. So negative charge will come on this carbon, that is para position. Next step, this negative charge will be shifted to this side and this bond will be to this carbon. तो ये क्या हो जाएगा next step आपका यहाँ पे, this is negative CH2 double bond. Next step, this will move to this side. So this bond will be shifted to कार्बन अगेन. तो क्या हो जाएगा, अगेन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन. ठीक है, ये आपका बेंजाइल कार्बन आयन बन गया. बॉन्ड विल बी इन दिस पोजीशन. सो दीज आर द कैनोनिकल स्ट्रक्चर. ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, मोर विल बी द रेजोनेंस, मोर विल बी द स्टेबिलिटी. तो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी होती है कार्बन आयन की. वन मोर थिंग, इफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू दिस पोजीशन, दैट इज पैरा पोजीशन. So as you know that the carbon of the carbon ion is electron rich. ठीक है, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो गया तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट विल बी इंक्रीज्ड ऑन द कार्बन आयन. ठीक है, तो दिस विल डीस्टेबलाइजेस. इफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर अटैच्ड एट द पैरा पोजीशन देन दिस सिस्टम विल डीस्टेबलाइजेस. ठीक है, जैसे कि कौन कौन से आपके हो सकते हैं, OCH3. ठीक है, नेक्स्ट आपका OH, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, CH3. ठीक है, सो इफ दीज मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड एट द पैरा पोजीशन देन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन आयन विल इंक्रीज. दिस विल डीस्टेबलाइजेस दिस कार्बन आयन. ठीक है, तो ये आपका क्या करेगा, दिस विल डीस्टेबलाइजेस. ठीक है, किसको, कार्बन आयन को. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग लाइक NO2, नेक्स्ट Cl. ठीक है, COH. ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर ऑफ द ग्रुप. ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, ड्यू टू विच देयर विल बी डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस कार्बन. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट विल बी डिक्रीज्ड ऑन दिस कार्बन आयन. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स आर स्टेबलाइजिंग द कार्बन आयन. ठीक है, कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर लेते हैं अगर वो पैरा पोजीशन पे अटैच्ड हो, तो दे विल स्टेबलाइज कार्बन आयन. S character, greater will be the S character, greater will be the stability of carbon ion. Why there is greater stability of carbon ion? Because if the S character is larger then the electron density will be in S subshell will be more, which is much more close to the nucleus. और जितना ज़्यादा आपका negative charge much closer होगा towards the positive nucleus, much more stability will be there. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जितना ज़्यादा S character है, देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड C-. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड है. ट्रिपल बॉन्ड में आपको पता है S कैरेक्टर कितना होता है, 50% S character is there. ठीक है, ड्यू टू विच द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बन आयन विल बी क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, बिकॉज दिस कार्बन आयन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. ग्रेटर विल बी द S कैरेक्टर, ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नेक्स्ट आप ये देख लीजिए, और जो बॉन्ड लेंथ है वो भी आपकी शॉर्टर है, तो इसका मतलब न्यूक्लियस के पास ज़्यादा आ रहे हैं. जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के पास ज़्यादा आ रहा है, इसी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है. नेक्स्ट आपका इन डबल बॉन्ड सिस्टम S कैरेक्टर होगा, दैट विल बी 33% S कैरेक्टर. नेक्स्ट इज CH3CH2-, इट इज़ हैविंग 25% S कैरेक्टर्स. तो इसकी जो स्टेबिलिटी है दैट इज लीस्ट. ग्रेटर विल बी द S कैरेक्टर, ग्रेटर विल बी द एबिलिटी ऑफ एटम टू होल्ड द नेगेटिव चार्ज. ओवरऑल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, S कैरेक्टर एंड इंडक्टिव इफेक्ट. देख लीजिए यहाँ पे
सबसे ज़्यादा किस केस में होगा? ग्रेटर विल बी द एस कैरेक्टर, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, तो सबसे ज़्यादा इसमें है। नेक्स्ट, ग्रेटर विल बी द रेजोनेंस, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, तो C6H5 होल 3 C माइनस विल बी हैविंग ग्रेटर स्टेबिलिटी, दिस इज 3 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री एराइल सिस्टम। नेक्स्ट C6H5 2, ठीक है, दिस इज 2 डिग्री एराइल सिस्टम, दिस इज 3 डिग्री। नेक्स्ट इज C6H5 CH2 माइनस 1 डिग्री। नेक्स्ट CH2 minus CH double bond CH2, that is allyl system. Next C6H5 minus phenyl carbon ion, and there is a double bond, ठीक है, तो this is S character will be decreased in comparison to this. Next, ठीक है, methyl carbon ion 1 degree carbon ion, 2 degree carbon ion, or least will be 3 degree carbon ion. Next is the stability order on the basis of when there is electron donating or electron withdrawing groups are attached to the benzene ring in which there is carbon ion. तो देख लीजिए आपका एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरा NO2 C6H4 CH2 minus, this is electron withdrawing group, so this will decrease the electron density of this carbon ion, तो इसकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। नेक्स्ट आपका पैरा Cl C6H5 CH2 माइनस, उसके कंपैरिजन में ये कम आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है जितना इस केस में होगा। नेक्स्ट C6H5 CH2 माइनस, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, दिस इज बेंजाइल कार्बन आयन, CH3 C6H4 CH2 माइनस, एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट, इट इज़ बिहेविंग एज अ डोनेटिंग ग्रुप, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पैरा पोजीशन पे डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है। नेक्स्ट इज पैरा OCH3 C6H4 CH2 माइनस, ठीक है, तो ये इस केस में आपका और ज़्यादा क्या हो जाएगा, दिस विल बी लीस्ट स्टेबल बिकॉज द इन पैरा पोजिशन द एटम विच इज़ अटैच टू द फिनाइल पोर्शन इज ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो दिस विल बी मच मोर डोनेटिंग ग्रुप इन कंपेरिजन टू दिस मिथाइल, ठीक है, तो दिस विल बी लीस्ट स्टेबल। एक्टिविटी ऑर्डर इन एलिफैटिक कार्बन आयन, ग्रेटर विल बी द एल्काइल ग्रुप्स अटैच टू द कार्बन आयन, लेसर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, एल्काइल ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट कॉज करते हैं, तो लीस्ट स्टेबल विल बी 3 डिग्री, तो मोस्ट स्टेबल विल बी मिथाइल कार्बन आयन। नेक्स्ट 1 डिग्री कार्बन आयन, नेक्स्ट 2 डिग्री कार्बन आयन, ठीक है, next will be 3 degree carbon ion, because in this case the stability is least. Diagram, carbon ion is having sp3 hybridization. ठीक है, it is having sp3 hybridization but it is not having tetrahedral shape as in CH4. CH4 में tetrahedral shape होता है, but in the case of carbon ion there is no tetrahedral shape whether it is sp3 hybridized. The shape of carbon ion is pyramidal, ठीक है, विच यू हैव स्टडीड इन VCPR थ्योरी, ठीक है, पिरामिडल शेप होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द कार्बन होंगे दैट विल बी 8, ठीक है, तो व्हाई इट इज हैविंग पिरामिडल स्ट्रक्चर देख ले, ठीक है, नेगेटिव चार्ज मीन्स देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन द 1 ऑर्बिटल, ठीक है, एक p ऑर्बिटल में वो आपके प्रेजेंट होंगे, हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में। दीज आर 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, दीज आर सिग्मा बॉन्ड, sp3 सिग्मा बॉन्ड, sp3 सिग्मा बॉन्ड, sp3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और ये जो आपका ये वाला ऑर्बिटल है इट इज़ हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सो बिकॉज देयर इज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन दीज बॉन्ड मूव टूवर्ड्स ईच अदर,
they are moving away from the lone pair, ठीक है, because the electrons of the lone pair are much more free in comparison to bonded covalent electrons. कौन से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री होंगे? नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री होंगे, because of that bigger electron cloud is there, due to which there will be more repulsion between lone pair and covalent bond, ठीक है. तो covalent bond के बीच में less repulsion है, तो they will shift towards each other, ठीक है, एंड अवे फ्रॉम द लोन पेयर, ड्यू टू विच द एंगल इज लेस देन, ड्यू टू विच द एंगल विल बी लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स, विच इज टेट्राहेड्रल एंगल, ठीक है. तो इससे लेस होता है, ठीक है. और इस जो शेप है यहाँ पे, दिस शेप इज नोन एज पिरामिडल शेप. सो दिस इज द शेप ऑफ कार्बोनायन इन द केस व्हेन देयर इज हाइड्रोजन इज प्रेजेंट और आइदर सम एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट. व्हेन दिस कार्बोनायन इज बॉन्डेड टू द डबली और ट्रिपली बॉन्डेड सिस्टम, देन देयर विल be the structure which will be obtained is planar. Example, ठीक है, यहां पे जो आपका शेप होगा इन द एलाइल सिस्टम, ठीक है, इन द एलाइल सिस्टम एंड एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है, यहां पे जो आपका शेप होगा दैट विल बी प्लेनर, ठीक है. वाई इट इज प्लेनर? बिकॉज दिस नेगेटिव चार्ज इज कॉन्जुगेटेड विद द p ऑर्बिटल, दैट इज pi ऑर्बिटल, देन दिस नेगेटिव चार्ज विल बी कॉन्जुगेटेड विद दिस pi सिस्टम, ठीक है. बिकॉज ऑफ दैट दिस विल बी प्लेनर मॉलिक्यूल, ठीक है. तो जब नेगेटिव चार्ज आपका pi सिस्टम से कॉन्जुगेट होता है, तो आपको हमेशा से पता है जो pi सिस्टम है दैट इज प्लेनर, ठीक है, यानी एक ही प्लेन में सारे एटम्स होते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है. जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो इन दिस ऑर्बिटल देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. पाई ऑर्बिटल ये है आपका, ये इसको रिप्रेजेंट करें तो दिस इज 1 p ऑर्बिटल, दिस इज 1 p ऑर्बिटल विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ठीक है. ऑर्बिटल, दिस पाई ऑर्बिटल इज कॉन्जुगेटेड विद दिस लोन पेयर, ठीक है. बिकॉज ऑफ दैट दिस विल बी अ प्लेनर मॉलिक्यूल, इट मीन्स ऑल द एटम्स आर इन द सेम प्लेन, ठीक है. सो व्हेन द नेगेटिव चार्ज इज कॉन्जुगेटेड विद द पाई सिस्टम, देन द मॉलिक्यूल विल बी प्लेनर. The free radical, when the atom or the group of atom having odd electron or unpaired electron present in them, then that species will be known as free radical, ठीक है. So there are many methods of preparation by which we can generate the free radical. So what are the condition for generation of free radical? Either light or high temperature or the presence of peroxide. तो देख लेते हैं यहाँ पे Cl2 in the presence of light, ठीक है. सो इन दिस केस, इन द केस ऑफ फ्री रेडिकल, द कंडीशन इज इन दिस केस देयर विल बी होमोलिटिक फ्यूजन. इट मीन्स बोथ द एटम्स विल टेक अवे द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड पेयर, ठीक है. तो इसका मतलब जब यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फिश एरो विच रिप्रेजेंट 1 इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट. So the odd electron comes on this chlorine, ठीक है. So this will be named as free radical. Next example, CH3, CH3. This is methyl free radical. Next, ROR. This is peroxide. O single bond. O is represented as peroxide, ठीक है. In the presence of light or heat, ठीक है, this will be converted into free radical, ठीक है. So there are many methods by which we can generate free radical, ठीक है. तो this is free radical. Next is classification. First is preparation, second is classification. Free radicals are also classified in the similar way as the carbanion and carbocation has. तो ठीक कौन से हो जाएंगे आपके यहाँ पे classification? 3 degree, ठीक है, 2 degree and 1 degree free radical on the basis of alkyl groups attached to the carbon which is having odd electron. Next is stability order of free radical, ठीक है.
free radical is having 7 electrons in their valence shell. It means they are having less electron in comparison to 8. ठीक है, octet rule follow नहीं कर रहा है. It means it is electron deficient. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है. तो इफ द एल्काइल ग्रुप्स विच आर अटैच्ड टू द एटम विच इज हैविंग फ्री रेडिकल और ऑड इलेक्ट्रॉन, देन दीज एल्काइल ग्रुप बी बिहेविंग एज अ डोनेटिंग ग्रुप. ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा होगा ग्रेटर विल बी द प्लस आई इफेक्ट, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल. ठीक है, तो फर्स्ट stability is explained by inductive effect. Greater will be the number of alkyl groups, greater will be the stability of free radical. देख लीजिए यहाँ पे. ठीक है, so alkyl groups are behaving as a donating group. They are donating sigma electron. This free radical is electron deficient. It is 1 electron deficient from the octet valence shell. तो अब यहाँ पे ये क्या होगा, these alkyl group will shift sigma electron towards itself, due to which this free radical will stabilize. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है. ठीक है, नेक्स्ट आपका this is 2 degree. In this case stability will be less in comparison to 3 degree because of less plus I effect. Next is CH3 CH2 और least किस में होगा, in methyl free radical because there is no donating group. ठीक है, तो this will be least stable. This is 1 degree. Inductive effect, that is plus I effect. इट इज़ डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, जैसे जैसे एल्काइल के नंबर आपके डिक्रीज होंगे वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट भी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा. सो लेफ्ट टू राइट इट इज़ डिक्रीजिंग. ठीक है, सो द stability will also decrease left to right. ठीक है, because this free radical is 1 electron less or it is electron deficient, so it will be stabilizes by more alkyl groups when attached to this free radical. This will be more stabilized. ठीक है, तो यानी इसका मतलब donating group इसको क्या करते हैं, stabilize करते हैं. ठीक है, तो this will be the stability order. Stability is explained by resonance. If free radical is conjugated with the double bond, ठीक है, then there will be, ठीक है, in the case of free radical there should be half arrow representation will be done. ठीक है, तो देख लीजिए, this is half arrow, this is moving to this side, so this will be moving to this side. तो क्या हो जाएगा, CH2 double bond CH, CH2 free radical. ठीक है, so these are the two canonical structure in allyl free radical. Next is benzyl system. ठीक है, in this case there will also be half arrow representation will takes place. So this free radical will be shifted to this side, so this free radical will be shifted to this side. ठीक है, so this is ortho para directing. ठीक है, it means the electron density is increasing at ortho para position because there is one free electron, that is odd electron. ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, double bond, in this carbon there will be a free radical. Next, ठीक है, half arrow representation होगा, तो this will be shifted to this side, this will be shifted to this side and this will be to this position. So next will be free radical in para position, double bond CH2. Next, this free radical will shift to this side, so this bond will be shifted to this. This is ortho position. So free radical will come on this carbon. These are the double bonds. Next, ठीक है, ठीक, next will be free radical on this carbon.
ठीक है. सो दीज आर द कैनोनिकल स्ट्रक्चर विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द बेंजाइल फ्री रेडिकल. बिकॉज देयर इज वन फ्री इलेक्ट्रॉन, सो द ऑर्थो पैरा पोजिशन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज इंक्रीजिंग. हाइपर कॉन्जुगेशन विल ऑल्सो स्टेबलाइजेज द फ्री रेडिकल. ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ अल्फा कार्बन, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी. ठीक है. वाई इट इज स्टेबलाइजिंग? बिकॉज दिस फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इट इज वन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. ठीक है. तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस केस में होगा? इन टर्शरी, देन सेकेंडरी, नेक्स्ट प्राइमरी, and least will be in methyl free radical. So let's see how the hyperconjugation will takes place. What is the role of alpha hydrogen in stabilizing the free radical? This is 1 degree free radical. ठीक है. तो in this the fish arrow representation will be takes place. So this bond, one electron of this bond will be taken by this carbon and other will be taken by this hydrogen. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाएगा. यानी नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हो गया? सी पे क्या आ गया आपका? ऑड इलेक्ट्रॉन. CH2 ऑड, दिस विल बी फ्री रेडिकल. H. So there is one electron in this carbon, one electron in this carbon. So this will form a bond. ठीक है. सो द डबल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड दिस कार्बन. ठीक है. तो नेक्स्ट क्या प्रेजेंट कर सकते हैं? नेक्स्ट ये वाला आपका रेडिकल CH2. ठीक है. सो दीज आर 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स. ठीक है. नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन will be there, greater will be the number of hyperconjugative structure, greater will be the stability. ठीक है. तो हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ही आपकी जो फ्री रेडिकल है दैट विल स्टेबलाइज. ठीक है. नेक्स्ट इज थर्ड. नेक्स्ट इज ओवरऑल रिएक्टिविटी ऑर्डर इन फ्री रेडिकल. इट इज एक्सप्लेन्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन. तो देख लेते हैं. ग्रेटर विल बी द फिनाइल ग्रुप्स अटैच टू द फ्री रेडिकल्स. ठीक है. तो ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी बिकॉज दिस फ्री रेडिकल विल बी कॉन्जुगेटेड टू द डबल बॉन्ड. सो द नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर विल बी मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल. नेक्स्ट इज C6H5 2. ठीक है. दिस इज टर्शरी एराइल फ्री रेडिकल, दिस इज सेकेंडरी एराइल फ्री रेडिकल. नेक्स्ट विल बी C6H5, this is 1 degree aryl. Next, greater will be the number of alkyl groups, greater will be the hyperconjugation and inductive effect. Secondary free radical. Next, primary free radical. Next, methyl free radical. Next is CH2 double bond CH. Next, CH triple bond C free radical. ठीक है. This is least stable. Why this is least stable? Because the S character is more, electronegativity is more. So there is one electron less in the free radical case. So this will be more electron deficient. So this will be less या least stable है. ठीक है. तो this is the overall reactivity order of the free radical. Next is orbital structure of free radical. When the alkyl groups are attached with the free radical carbon, then the structure which was observed was planar. It was similar to that of carbocation. It means it is having sp2 hybridization. ठीक है. देख लीजिए यहाँ पे. ठीक है. When the structure is planar, the angle between the alkyl groups will be 120 degree. ठीक है. तो ये जो आपका प्लेनर स्ट्रक्चर था ये आपका था और जो ये आपका p ऑर्बिटल था in this there is one odd electron. ठीक है. It was similar to that of carbocation. So this will be sp2 hybridized sigma bond, sp2 hybridized sigma bond, sp2 hybridized sigma bond. ठीक है. Whereas when in the case of free radical, instead of alkyl some other electronegative element is attached, then there is observed that instead of planar structure there is pyramidal structure. ठीक है. तो देख लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे CF3.
ठीक है, दिस इज पिरामिडल स्ट्रक्चर एंड एंगल विल बी लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स विच इज टेट्राहेड्रल एंगल, यानी इससे भी लेस होता है। ठीक है, so why this is happening? It is because in this case as the electrons are shifted towards the most electronegative element, because of its electronegativity the electron density near the carbon will be less. ठीक है, so electron density near the carbon will be less, so there will be less repulsion. ठीक है, less repulsion between the bonds. ठीक है, because of the less repulsion these bonds will come near to each other. ठीक है, क्यों यहाँ पे रिपल्शन कम हो रहा है? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नियर कार्बन इज लेस, ड्यू टू विच द एंगल बिटवीन CF बॉन्ड विल डिक्रीज। ठीक है, ड्यू टू विच इट इज शोइंग पिरामिडल structure. Next reactive intermediate is carbene. In carbene, carbon is bonded by two monovalent atoms or group of atoms and also consist of one lone pair of electrons or non-bonding electrons. The carbene formation takes place by either in the presence of light or in the presence of temperature, that is by thermal activity or pyrolysis. So the preparation method for carbene is given as H2 double bond N. ठीक है, in this nitrogen there is a negative charge, so two non-bonding electrons are present. In this nitrogen there is a positive charge, so this bond will be, so this lone pair will be shifted to this side, this bond will be shifted to this side. So next resonating structure will be CH2 minus. ठीक है, single bond N, triple bond N, one lone pair. ठीक है, so the positive charge will be on this nitrogen. ठीक है, because of the positive charge this nitrogen will take away this bond with itself. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो हम बाहर क्या निकल गया आपका N2. ठीक है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब वन लोन पेयर. ठीक है, तो हमें क्या मिल गया CH2. ठीक है, दैट इज कार्बीन. ठीक है, दिस इज कार्बीन. Next preparation method will be, this is azomethane. ठीक है, second method from ketenes. ठीक है, this reaction is occurring in the presence of light or in the presence of high temperature, that is either here is light is used or high temperature is used. Next method in ketenes, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दिस इज कीटीन. ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, इन दिस केस दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टू दिस कार्बन, वेयर एज दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टू दिस कार्बन. ठीक है, सो व्हेन दिस होल बॉन्ड इज शिफ्टेड टू दिस कार्बन इट मीन्स CH2 the carbon will be having one non-bonding electron, this is known as carbene, while there will be byproduct, that is carbonyl, which is also having one non-bonding electron in the carbon. ठीक है, so this is the preparation method for carbenes. Carbenes are very reactive, just like the carbocation. They are having 6 electrons in their valence shell. Because of their high reactivity due to electron deficiency, they are also known as electrophile or Lewis acid. They are of two types. One is singlet carbene and other is triplet carbene. So first is singlet carbene and second is triplet carbene. This is sp2 hybridized, whereas triplet p hybridized. So the structure which is formed by the singlet carbene is represented like this. ठीक है, these two bonds are formed by the alkyl system by the carbon are sigma sp2 hybridized. ठीक है, so these bonds are formed by sigma sp2 hybridized orbital. ठीक है, whereas third orbital which is sigma sp2 hybridized is consisting of non-bonding electron. ठीक है, is consisting of a lone pair of electron which is non-bonded. ठीक है, and this third orbital
ठीक है, दिस थर्ड ऑर्बिटल वॉज एम्प्टी, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगलेट कार्बीन वॉज sp2 hybridized because of the lone pair, because of the presence of lone pair in one of the sigma sp2 hybridized orbital, the repulsion between lone pair bond pair will be more, ठीक है। So because of the lone pair bond pair repulsion is more, the bond angle between the two alkyl groups, two alkyl bonds will be decreased, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी लेस देन 120 डिग्री। इट इज बिकॉज ऑफ द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है, दिस लोन पेयर एंड दिस बॉन्ड पेयर, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड बाय द कार्बीन्स, वेयर एज इन ट्रिपलेट द स्ट्रक्चर शोन बाय triplet carbene, in this two bonds are formed with alkyl system. These two bonds are formed by the orbitals which are sigma sp hybridized, ठीक है, sp hybridized orbital which are forming sigma bond with each other, ठीक है, whereas other two orbitals are perpendicular to each other and these orbitals are unhybridized and each orbital is consisting of one electron, ठीक है। So this is also known as diradical because one electron is present in each of the orbital, ठीक है, unhybridized orbital. So the hybridization was sp hybridized, ठीक है, it is also known as diradical. The stability of this carbene is more इन कंपेरिजन टू सिंगलेट कार्बीन, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी सिंगलेट कार्बीन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। द शेप ऑफ दिस कार्बीन इज सिलेंड्रिकल बिकॉज ऑफ द sp हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज सिलेंड्रिकल और लीनियर शेप, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द sp हाइब्रिडाइजेशन। रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज नाइट्रीन्स। इन नाइट्रीन्स नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू वन मोनोवेलेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स एंड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ दैट it is highly reactive. The formation of nitrene occur by the thermolysis of the alkyl azide. तो देख लेते हैं what is the preparation method by which we can form nitrines. ठीक है, in this nitrogen there is a negative charge. It means there are two lone pairs on this nitrogen, whereas this nitrogen will be having positive charge because it is forming 4 bonds. This nitrogen will be having one lone pair of electron, ठीक है। So this bond, that is this negative charge, will be shifted to this position, so this bond will be shifted to this nitrogen. So the resonating structure which will be formed, nitrogen will be now having negative charge, it means there will be 2 lone pair, ठीक है, whereas this nitrogen will be having positive charge because it is forming 4 bond, and this nitrogen, this first nitrogen will be having one lone pair. Because of the positive charge in this nitrogen, as nitrogen is third most electronegative element, so the stability will be less, due to which this bond will be shifted to this nitrogen. So the byproduct will be N2 molecule. Formation of nitrene takes place. Nitrene will be having 2 lone pair of electrons and 1 covalent bond with the alkyl system. It is highly reactive because the octet of this is not complete. There are 6 electrons in its valence shell. There are 2 shared electrons and 2 lone pairs. So because of that, total number of electrons in nitrene or nitrogen will be having 6, ठीक है, because of that it is highly reactive.